ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಅಖಾಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ಸಹನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹನ್. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕರೀಂ, ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಫಯಾಜ್ ಹೊಕಾಯ್. ಈ ಒಂದು ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ನ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು, ಅರ್ಥಾತ್ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಸ್ಥ ಆಟಗಾರರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಜಿದ್ದಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಣದ ಮುಖಭಾಗವನ್ನು ಜಯಿಸತಕ್ಕಂಥ DGS ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಔಟರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್, ಗೂಢ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶಿವ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಸಹ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಓಟದಿಂದಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಚಿನ್ ಹೆಗಡೆ, ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ, ತದನಂತರ ವಿಶ್ವ, ತದನಂತರ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಬುದ್ಧಿರ್ಗ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೀವದಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ DGSಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಅವರಿಗೆ ಈತ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಸೆತ ಒಂಟಿ ಓಟ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂದಗತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್, ಮತ್ತೆ ಶಾನ್. ಬಾಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ವಿನಯ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು ಇರುವ ಆಟಗಾರರು. ಒಂಟಿ ಓಟದಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 5 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೆ ಶಾನ್ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನ. ಲಕ್ಷ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಇತರರ ಖಾತೆಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 6 ಓಟಗಳು ಇತರರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಓಟಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಸ್ವೀಪಿಗೆ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಢ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇಮ್ರಾನ್ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಸೆತ 1 ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 6 ಓಟದ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಂಚ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಸಿದರು. ಅವನು ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 12ಕ್ಕೆ 4.
नवीन क्रिकेटर्स ಸೀಸನ್ 1 ದಿವಂಗತ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾಪ್ ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 12 फॉर नो लॉस. इस बीच अपना बॉलिंग मार संभालते बदला करते हुए लोकेश, जो कि युवा खिलाड़ी है, पिछले मैच में एक उम्दा कारकर्दगी दिखाई थी उसने. इस खिलाड़ी ने, जिस तरह की तारीफ की जाए ये युवा खिलाड़ी की, इसमें भरपूर टैलेंट भरा हुआ है, जो कि एक अच्छे स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, अच्छा फील्डर भी माना जाता है. जिस तरह की इनकी कारकर्दगी है, इस कारकर्दगी के बाद यहाँ पर डीजे चैलेंजर्स ने पिछला मैच जीता था. इस बीच अपने कोटा की पहले ओवर की पहली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट की ओर से उनका सामना करेंगे शिव, जो कि एक जाने माने खिलाड़ी माने जाते हैं कड़ीली फ्रेंड्स की ओर से. जिस तरह के ये शॉट्स लगाते हैं सीधे सीमा रेखा बाहर ही चली जाती है, ऐसी शॉट्स लगाते हैं, माहिर खिलाड़ी है. इस बीच अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को रिवर्स स्वीप करना चाहता था यहाँ पर बैट्समैन ने, और ये गेंद ऑफ स्टिक से बाहर जाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर. कोई गलती नहीं की यहाँ पर विकेट कीपर ने, और यहाँ पर एक थोड़ी सी वाइड की अपील पर वाइड दे दिया यहाँ पर, जो कि ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर जाती हुई रिवर्स स्वीप करना चाहते थे बैट्समैन इस गेंद को, और यहाँ पर चूक गए, और ये अंपायर ने इशारा दिया वाइड का. इस वाइड के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई 13 रन. अब देखना चाहिए कि किस तरह का यहाँ पर निर्णय होता है. जिस तरह अंपायर ने पहली वाइड दी थी इस गेंद पर, जो कि रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे शिव. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसका निर्णय दे दें, क्योंकि यहाँ पर टाइम का बहुत हम लोग को सवाल हो रहा है, दिक्कत पैदा हो रही है टाइम की. यहाँ पर डीजे चैलेंजर्स के जो खिलाड़ी है वो चैलेंज कर रहे हैं अंपायर को कि ये वाइड नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स स्वीप खेला था वहाँ पर शिव प्रसाद ने, और इसको अंपायर ने परखा और वाइड में तब्दील किया था, और इसके खिलाफ अपील की जा रही है. देखना चाहिए कि किस तरह का निर्णय आता है यहाँ पर अंपायर फयाज और करीम करवाड़ी के बीच, जो कि फयाज एक अच्छे अंपायर माने जाते हैं, आईसीसी का उनका सर्टिफिकेट भी है इस टूर्नामेंट का, जो कि ऑफिशियल्स के रूप में यहाँ पर हॉकाई ऑफिशियल्स अच्छी तरह से इस टूर्नामेंट को चला रहा है. प्लीज अंपायर डिसीजन. वाइड बॉल करार दिया है यहाँ पर, और इस वाइड के साथ स्कोर की बढ़ोतरी होती हुई 13 रन पर जा पहुंची है. और अपना बॉलिंग मार संभालते हुए लोकेश, जो कि युवा खिलाड़ी है, दिल्ली की ओर से खेलते हैं यहाँ पर, शायद उनका दुबई में Thank you so much, Hadi Bhai, for your wonderful commentary in Kannada and Hindi as well.
कुल मिलाकर स्कोर है 14 बोर्ड पर बिना कोई विकेट के नुकसान की बहुत ही अच्छी शुरुआत मिली है यहाँ पर टीम कटील फ्रेंड्स कटील को इस दूसरी लीग मैच पर। दोनों टीमें यहां पर क्वार्टर फाइनल पर अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है और जीतने वाली टीम इस पूल पर टॉप ऑफ द टेबल रहेंगी। इस उम्मीद के साथ दोनों ही टीमें आमने सामने। और एक बार लोकेश, एक बेहतरीन गेंदबाज है लोकेश, पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रह चुके हैं। इस बार शॉर्ट लाइन डिलीवरी, बड़ी शॉट की तलाश के लिए गए थे वहां पर सचिन हेगड़े, लेकिन पूरी तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, फिर भी एक रन लेने से नहीं रोक पाए टीम डीजेएस चैलेंजर्स के फील्डर्स। रन बढ़ता हुआ 15 दूसरे ओवर की चालती पर। बहुत ही दो दिग्गज टीमें यहां पर आमने सामने टेनिस बॉल क्रिकेट जगत के। और एक बार लोकेश टू शिवा, इस बार रिवर्स स्वीप की कोशिश, फिर से पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए वहां पर शिवा, फिर भी एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अभी तक बहुत ही कसी भी गेंदबाजी मैं कहूंगा यहां पर लोकेश द्वारा 3 गेंदों पर मात्र 3 रन दिए हैं अभी तक। ये दर्शाता है इनके अनुभव को और इनके स्किल्स को। और एक बार लोकेश, इस बार सचिन हेगड़े, बड़ी शॉट की कोशिश वहां पर बाहरी किनारा और गेंद सीधा पहुंची शॉर्ट थर्डमैन फील्डर के पास। इसी के साथ सचिन हेगड़े की पारी की अंत। पहला झटका यहां पर टीम कटील फ्रेंड्स कटील को। Team DJS Challengers gets the breakthrough eventually here in the second over. The man who departed is Sachin Hegde, the man who was doing quite well so far, who was inside the crease as an opener. 2 more deliveries are remaining. New batsman in is Ashok Matthias, one of the finest hitter of tennis ball cricket, who's joining Shiva Prasad into the crease. The current run rate is at 9.6 run per over and projected score is 48 as per the Cricket Heroes statistics. Definitely they should look at least close to 66 runs, which can be defendable against the great batting side of DJS Challengers if the bowlers showcase the disciplined bowling from Katil friends. Once again, Lokesh to bowl the last but one, that is a 5th ball of his spell. स्ट्राइकर छोर पर अशोक मतायस सामना करेंगे लोकेश का। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा किया है लोकेश ने। इस बार धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद खेल दिया उसको स्क्वायर लेग की दिशा पर, सीधा फील्डर के हाथों में थमा दिया था वहां पर रोहन। एक आसान सा कैच लेकर पहली ही गेंद पर अशोक मतायस गोल्डन डक होकर पेविलियन वापस। दूसरा झटका यहां पर टीम कटील फ्रेंड्स को। संभल कर खेलना पड़ेगा यहां पर कटील फ्रेंड्स को अगर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है टीम डीजेएस चैलेंजर्स के आगे। तो एक छोटी सी साझेदारी की सख्त जरूरत। इस उम्मीद के साथ नए बल्लेबाज के रूप पर हमदान उड़पे, कटील टीम के जान और शान हमदान क्रीज पर उतरते हुए जुड़ेंगे कप्तान शिव प्रसाद को। पिछले हफ्ते भिजॉइस पर केसीएल फाइनल्स पर धुएंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था हमदान उडुपी ने टीम एलिगेंट कटील के आगे, एलिगेंट मैंगलोर के आगे फाइनल्स पर। देखना है कि इस मैच पर किस तरीके की बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हैं यहां पर हमदान उडुपी। रिवर्स स्वीप और बड़ी शॉट के लिए जाने जाते हैं हमदान। वो सामना करेंगे डीजेएस के बेहतरीन गेंदबाज लोकेश का। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी। रन बोर्ड पर स्कोर है 16, 2 विकेट की नुकसान पर। लोकेश इज ऑन हैट्रिक हियर।
क्या ये हैट्रिक हो सकता है? यहां पर रक्षणात्मक तरीके से पुश किया था वहां पर गेंद को कवर्स की दिशा पर, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के बदौलत 2 रन आसानी के साथ प्राप्त किया था। इस 2 रन के साथ दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18, 2 विकेट की नुकसान पर। अर्थात ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18, 2 ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. Current run rate is 9 runs per over. Score is 18 run on the board after completion of a second over. The third over will be a challenging over. If Team Katil scores 15 run in this over, the 5 run will be awarded as a bonus for the team. तीसरी ओवर का जिम्मा संभालते हुए विनय विन्नू. ये ओवर चैलेंजिंग ओवर रहेगा. इस पर अगर 15 रन बनाने पर कामयाबी हासिल करती है कटील, तो 5 रन बोनस के रूप पर दिया जाएगा. इस उम्मीद के साथ स्ट्राइकर छोर पर शिवा. कटील फ्रेंड्स के धुएंधार बल्लेबाज शिवा स्ट्राइकर पर सामना करेंगे विन्नू का. इस बार ब्लॉक होल डिलीवरी सीधा खेल दिया था उसको. बॉलर्स बैक. आसान सा कैच करने का मौके को गंवाते हुए वहां पर डीप लॉन्ग ऑन का फील्डर एक जीवन दान हासिल करते हुए यहां पर शिव प्रसाद कटील. इस तरीके के छोटी छोटी गलतियों का करेक्शन करना पड़ेगा यहां पर टीम डीजेएस के फील्डर्स को, अगर इस मैच पर काबू हासिल करना है तो. एक जीवन दान के साथ साथ एक रन भी छोड़ दिया है वहां पर उस फील्डर ने. और एक बार हमदान रिवर्स स्वीप की कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन चतुराई से लाइन को चेंज कर दिया था गेंदबाज ने, जिसके बदौलत हल्के हाथों से जेंटल पुश कर दिया था कवर्स की दिशा पर 1 रन के लिए. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर विनय द्वारा अपने अनुभव को दर्शाते हुए. जानते हैं कि हर एक रन कितना महत्वपूर्ण है अपनी टीम के लिए. और एक बार विनय गेंदबाजी करेंगे शिवा को. और एक बार गुड लेंथ डिलीवरी खेल दिया था उसको स्क्वायर लेग की दिशा पर. फील्डर तनवीर काजी वहां पर मौजूद जब तक गेंद को वापस करते. 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज. इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21-21 फॉर द लॉस ऑफ 2. करेंट रन रेट पर काबू हासिल करते हुए यहां पर टीम डीजेएस चैलेंजर्स के गेंदबाज. पिछली ओवर पर लोकेश और इस ओवर पर विनय उसी तरीके के गेंदबाजी को दर्शाते हुए. और एक डॉटेड डिलीवरी. बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है विनय विन्नू, जो कि अक्सर टेनिस बॉल क्रिकेट पर खेलते हुए दिखाई देते हैं. अपनी अनुभव को यहां पर दर्शाते हुए विनय. और एक बार ओवर की 5वीं गेंद को लेकर सामना करेंगे हमदान. इस बार स्वीप कर दिया था उसको स्क्वायर लेग की दिशा पर. फील्डर वहां पर मौजूद जरूर थे, लेकिन खराब फील्डिंग वहां पर उस फील्डर द्वारा, जिसके बदौलत 4 रन हासिल करते हुए हमदान. Shahzan is a man on the square leg, deep square leg fielding. Things are not happening good here for DJS Challengers fielders. The drop catches and missed fieldings are
are becoming bit of expensive here for the team. Definitely they have to recover from these kind of fieldings, then only they can have a control on this match, because these two are the top teams of Karnataka pool. After the completion of 3 overs, score is 26 for 2. ಅರ್ಥಾತ್ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26, 2 ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. ಅದೆಷ್ಟೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಖಾದಾಟ ಈ ಒಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ 11 ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್ 1ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟೀಲ್, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ DJS ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಿನ ಖಾದಾಟ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ರೋವೆಲ್ ಪ್ರೀತ್, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರಂತ ಕಾದ್ ನೋಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ದಾನ್, ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋವೆಲ್. इस बार शॉर्ट लाइन डिलीवरी खेल दिया था उसको मिड विकेट की दिशा पर, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन किस्मत का साथ वहां पर हमदान उडुपी को हल्की सी गलती वहां पर, जिसके वजह से बाउंड्री लाइन के ऊपर उनका कदम आ गया था. मतलब स्कोरबोर्ड में 6 रन आ गए थे. कोशिश जरूर वहां पर अच्छी हुई थी, लेकिन कदम को कंट्रोल करने पर कामयाब नहीं हो पाए वहां पर शान, जिसके बदौलत 6 रन आ चुका है स्कोरबोर्ड पर. 6 रन के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 32. और एक बार कदमों का इस्तेमाल, खेल दिया था उसको कवर्स के ऊपर से 6 रन के लिए. यह है बल्लेबाजी, यह है बल्लेबाज हमदान. जब इनका बल्ला रन उगलता है तो टीम की पलड़ा हल्ला बोलता है. टीम की जान और शान हमदान. अभी तक इस ओवर पर 2 छक्के जड़ चुके हैं. क्या ये हैट्रिक सिक्सर होगा अगला गेंद? स्कोर इज 38 ऑन द बोर्ड फॉर 2 विकेट. और एक बार हमदान स्ट्राइकर छोर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने वाले बल्लेबाज. इस बार रिवर्स स्वीप की कोशिश, हवा में खेला हुआ शॉट, और इसी के साथ हमदान की पारी का अंत. एक आसान सा कैच दे बैठे थे वहां पर शॉट थर्ड मैन की दिशा पर. बेहतरीन वापसी मैं कहूंगा यहां पर रोवेल द्वारा. हमदान के स्थान को बढ़ते हुए और एक बड़े बल्लेबाज कीर्तन. I request Shakir Vitla. I request Shakir Vitla from Hawk Eye. Please come and report to the mic point. ताबड़तोड़ बल्लेबाजों से भरी हुई टीम कटील फ्रेंड्स कटील एक के बाद एक का बल्लेबाजी का बल प्रदर्शन करते हुए. पहले सचिन हेगड़े, उसके बाद हमदान उडुपी, अब उसके स्थान को भरते हुए कीर्तन. कप्तान शिवा को जुड़ते हुए क्रीज पर. अभी तक 4 गेंदों पर 12 रन दे चुके हैं यहां पर रोवेल, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है पिछले गेंद पर हमदान का. देखना है बाकी बचे 2 गेंदों पर किस तरीके की गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हैं यहां पर रोवेल.
स्ट्राइक का छोर पर कीर्तन, इस बार बेहतरीन गेंद, तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, पूरी तरीके से बीट कर दिया था वहां पर कीर्तन को। गेंद सीधा विकेट कीपर की सुरक्षित स्थानों पर, विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालते हुए यहां पर टीम डीजेएस के आइकॉन प्लेयर इमरान कोटेश्वरा। और एक बार कीर्तन रिवर्सिप की कोशिश, इस बार बल्ले पर गेंद आई नहीं, मतलब रन भी आई नहीं, और एक डॉटेड डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्ति। बेहतरीन वापसी मैं कहूंगा, यहां तक 2 गेंदें सिक्सर पे जा चुकी थी, उसके बाद विकेट और डॉटेड डिलीवरी के साथ अपनी वापसी दर्ज करते हुए स्कोर 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 after completion of 4 over. ಅರ್ಥಾತ್ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 38, 3 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. देखना है बाकी बचे 6 गेंदों पर कितना रन बटोरने पर कामयाबी हासिल करती है यहां पर कटील फ्रेंड्स के बल्लेबाज। कप्तान शिवा क्रीज पर अभी तक मौजूद। ಈ ಮೂಲಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೀಜ್ ನವಾಬ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39, 3 ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. इस ओवर की 5 गेंदें फेंकी जानी बाकी, और एक बार रमीज अच्छी शुरुआत की है अपनी पिछली गेंद पर। इस बार फिर से शॉर्ट लाइन डिलीवरी, बाहरी किनारा लेता हुआ गेंद हवा को छूते हुए पहुंची है गेंदबाज के सुरक्षित हाथों पर। इसी के साथ कीर्तन की पारी की अंत। विकेट नंबर 4 फॉल्स हियर फॉर कटील फ्रेंड्स। बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा अभी तक यहां पर डीजेएस चैलेंजर्स के सभी गेंदबाज द्वारा लगातार विकेट छिटकाने पर कामयाबी हासिल करते हुए, अपनी अनुभव को दर्शाते हुए। पहले लोकेश रोवेल, विनय और उसके बाद रमीज। नए बल्लेबाज के रूप पर सूर्यकांत इस मैदान पर सूर्य का आगमन हुआ है। आसमान पर सूरज ढलने लगा है, लेकिन ग्राउंड के अंदर सूरज का आगमन हुआ है। देखना है यहां पर रनों की सूरज को जगाते हैं या नहीं। सूर्या स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे अगली गेंद का। सूर्या यहां पर अंपायर से गार्ड लेते हुए सामना करेंगे रमीज का। अभी तक किफायती साबित हुए रमीज, अपनी अनुभव को दर्शाया है, बेहतरीन गेंदबाज है रमीज। इस बार ब्लॉक होल डिलीवरी रक्षणात्मक तरीके से खेल दिया था उसको फाइन लेग की दिशा पर। जब तक साजिद गेंद को वापस करते 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए यहां पर सूर्या इसी के साथ अपना खाता खोला है। यहां पर सूर्या ने इसी के साथ स्ट्राइकर छोर पर शिवा बड़ी शॉट की तलाश करनी पड़ेगी। कम से कम 2 सिक्सर यहां पर लाजिम चाहिए टीम कटील को, तब जाके एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है और गेंदबाजों की मनोबल को बढ़ा सकती है जब कटील की टीम गेंदबाजी पर आएगी। इस उम्मीद के साथ यहां पर वाइड की चाहत को दर्शाते हुए शिवा, लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर नहीं वहां पर अंपायर फयाज द्वारा। ओवर की आखिरी 2 गेंदें बाकी, अभी तक 4 गेंदों पर मात्र 2 रन देकर 1 विकेट चटकाया यहां पर रमीज ने।
अपने आप पे एक बेहतरीन गेंदबाज है यहाँ पर रमीज, टीम डीजेएस चैलेंजर्स की ओर से, और एक डॉटेड डिलीवरी। इनिंग्स का आखिरी ओवर जहां पर शिवा क्रीज पर मौजूद, फिर भी इस ओवर पर सिर्फ 2 रन दिए हैं यहाँ पर। ये दर्शाता है उनके अनुभव को। ये है रमीज टीम डीजेएस चैलेंजर्स की। इस बार अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जोखिम भरी हो सकती है। देखना है एम्पायर का डिसीजन क्या होगा। 2 रन मुकम्मल। इस 2 रन के साथ स्कोर है 42, 42 on the board, and they have set a target of 43 for DJ's challengers. So we will be right back after a short innings break. इसी के साथ दूसरी इनिंग्स की शुरुआत होने जा रही है यहाँ पर। खटील फ्रेंड्स की टीम अपनी फील्डिंग को सजाते हुए, इसी के साथ दोनों ही सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पर उतरते हुए। एक तरफ है रोवेल प्रीत और एक तरफ है इमरान कोटेश्वरा।
के साथ ओवर की पहली गेंद, शॉर्ट लाइन डिलीवरी खेल दिया था उसको मिड विकेट की दिशा पर। पावर प्ले का पूरा भरपूर फायदा उठाते हुए यहां पर इमरान 6 रन। ओवर की दूसरी गेंद थी, जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं इमरान कोटेश्वरा, उसी तरीके की बल्लेबाजी को बाखूबी निभाते हुए यहां पर अपनी टीम डीजेएस चैलेंजर्स के लिए। और एक बार शबीर, जो नकल गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले एक युवा गेंदबाज, इस बार फुल टॉस गेंद, रिवर्स स्वीप की कोशिश वहां पर, नो बॉल का इशारा स्ट्राइकर अंपायर के द्वारा। अगला गेंद फ्री हिट होगा, फ्री हिट का सिग्नल आते हुए मैन अंपायर फयाज से। 8 रन अभी तक 2 गेंदों पर। और एक बार शबीर, शॉर्ट लेन डिलीवरी, बड़ी शॉट की चाहत जरूर हुई थी वहां पर, कोई संपर्क नहीं था वहां पर बल्ला और गेंद के बीच। एक डॉटेड डिलीवरी एक अच्छे गेंदबाज की पहचान होती है, अच्छी वापसी मैं कहूंगा। जानते हैं कि इमरान कोटेश्वरा रिवर्स स्वीप और स्विच हिट के लिए किंग माने जाते हैं, उनको रुकाए रखना आसान बात नहीं होगा कोई भी गेंदबाज के लिए। यहां पर शबीर एक आइकॉन गेंदबाज के रूप पर कटील फ्रेंड्स की ओर से अपनी कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए। इस ओवर की 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी, अभी तक 8 रन है स्कोरबोर्ड पर। शुरुआती ओवर है, जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं यहां पर डीजेएस चैलेंजर्स। इस बार रिवर्स स्वीप की कोशिश, रिवर्स स्वीप के किंग जाने जाते हैं इमरान कोटेश्वरा, क्योंकि रिवर्स स्वीप मारना सबको आती नहीं और इनकी आदत जाती नहीं। और एक बार फिर से रिवर्स स्वीप की कोशिश हुई थी वहां पर, लेकिन चतुराई से गेंदबाजी किया था वहां पर शबीर ने। यह दर्शाता है शबीर के अनुभव को। एक बेहतरीन गेंदबाज है, आइकॉन गेंदबाज के रूप पर आज खेल रहे हैं यहां पर कटील फ्रेंड्स की ओर से, जो नकल डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं शबीर। हालांकि इस ओवर पर एक 6 जरूर आया था, उसके बाद बेहतरीन वापसी की थी यहां पर शबीर ने। बॉलर गुरु शेट्टी है ना, गुरुराज शेट्टी गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए। और एक युवा अनुभवी गेंदबाज गुरुराज शेट्टी, जिन्होंने पिछले हफ्ते केसीएल में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था कटील फ्रेंड्स की ओर से फाइनल मुकाबले पर। देखना है कि इस मैच पर किस तरीके की गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हैं। इस उम्मीद के साथ दूसरा ओवर का जिम्मा संभाला था यहां पर गुरुराज। पहली गेंद पर एक सिंगल रन दे बैठे हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 9 बिना कोई विकेट के नुकसान के। यहां पर विकेट लेने की तलाश करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी यहां पर टीम कटील फ्रेंड्स को, अगर इस मैच पर वापसी हासिल करना है तो। इस उम्मीद के साथ और एक बार गुरु, स्ट्राइकर छोर पर धुएंधार ताबड़तोड़ बल्लेबाज इमरान। टीम डीजेएस की शान और जान। इमरान जब तक क्रीज पर है तब तक इस मैच पे है जान, जब तक है इमरान तब तक है जान। और एक बार गुरु, इस बार तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, बेहतरीन शॉट, कलाइयों का इस्तेमाल, खेल दिया था उसको कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। यहां पर इमरान कोटेश्वरा का बल्ला रन उगलता हुआ।
और एक बार गुरु टू इमरान। इस बार ओवर पिच डिलीवरी, बड़ी शॉट की कोशिश हुई थी लेकिन खेल बैठे है मिड विकेट की दिशा पर और एक रन का इजाफा। इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए यहां पर इमरान स्ट्राइकर छोर पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रोवेल प्रीत, एक समय पर टेनिस बॉल क्रिकेट पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं रोवेल प्रीत। शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर सामना करेंगे गुरु का। इस बार शॉर्ट लाइन डिलीवरी, खेल जाता है उसको बॉलर्स बैक। शिवा वहां पर मौजूद जरूर थे लेकिन भाग्य का साथ रोवेल को गेंद शिवा तक पहुंची नहीं। एक रन से संतुष्ट और एक रन का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ 17 बिना कोई विकेट के नुकसान के। देखना यहां पर 17 किस तरीके का खतरा खड़ा करता है यहां पर दोनों ही टीमों को। स्ट्राइकर छोर पर इमरान सामना करेंगे गुरु राज का। देखना यहां पर किस तरीके से करते हैं गुरु राज। फिर से रिवर्स स्वीप, इस बार खेल दिया था स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन। यह है बल्लेबाजी, यह है स्विच हिट की किंग इमरान कोटेश्वरा का बल्लेबाजी का जलवा। यहां पर साइड स्क्रीन पर रिप्ले दिखाते हुए रिवर्स स्वीप का बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा इमरान के बल्ले से आता हुआ। और एक बार गुरु टू इमरान। फिर से शॉर्ट लाइन डिलीवरी, इस बार नई दिशा पर गेंद लेकिन जजमेंट पर कमजोरी यहां पर फील्डर द्वारा। जानते नहीं है किसका क्या छोड़ा है। बड़ी बड़ी मैचों पे छोटी छोटी गलतियां होती रहती है लेकिन ऐसी गलतियां छोटी नहीं कहलाती। यही गलती मैच को हरा देती है। इसको जान लेना पड़ेगा कटील के फील्डर को। देखना है इस जीवन दान का किस तरीके से फायदा उठाते हैं यहां पर इमरान। इसी के साथ दूसरी ओवर की समाप्ति। स्कोर है 25 रन बिना कोई विकेट की नुकसान के। अर्थात 2ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 25 ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಜೆಎಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ। ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಡಿಜೆಎಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा दोनों ही सलामी बल्लेबाज द्वारा। एक तरफ है इमरान और एक तरफ है रोवेल। गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए नए गेंदबाज की पहचान होने जा रही है कीर्तन शेट्टी। स्ट्राइकर छोर पर रोवेल। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया था, स्ट्राइक दिया है यहां पर इमरान को। The next match in this ground will be played between Vidwar boys versus Dunia brothers. I request both the team captains to come for the toss right after this innings. इस बार बेहतरीन शॉट, उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, गरज रहा है इमरान कोटेश्वर का बल्ला। I request both the team captains of Vidwar boys and Dunia brothers, please come for the toss to the mic point. The captains of Dunia brothers and Vidwar boys, you will be playing the next match in this venue. और एक बार इमरान सामना करेंगे कीर्तन का। इससे बेहतरीन गेंद ओवर पिच डिलीवरी थी, कोई संपर्क नहीं था वहां पर बल्ला और गेंद के बीच। गेंद सीधा पहुंची थी विकेट कीपर हमदान के हाथ। एक डॉटेड डिलीवरी से अपनी वापस को दर्ज करते हुए यहां पर कीर्तन। इस बार शॉर्ट लाइन डिलीवरी, वाइड की चाहत वहां पर
की जरूर थी, लेकिन कोई पुरस्कार नहीं वहां पर अंपायर फयाज द्वारा। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के लेवल 1 अंपायर रह चुके हैं फयाज, अनुभव की कोई कमी नहीं है इन अंपायर के पास। और एक बार कीर्तन, इस बार ब्लॉक होल डिलीवरी की कोशिश, खेल दिया है उसको वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा पर, एक बेहतरीन कैच उस फील्डर द्वारा। इसी के साथ इमरान कोटेश्वरा की पारी की अंत। नए बल्लेबाज के रूप पर लोकेश, पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच खिताब हासिल करने वाले बल्लेबाज। Eleven more runs required for Team DJS Challengers in 13 deliveries. What a knock from Imran Koteshwara here, the icon player of Team DJ's Challenger, showcasing all his batting skills. The man who has traveled all the way from Qatar to Dubai just to participate in 2 events back to back. One is Naveen 11, then comes Katil Friends Trophy, the season 14, which will be conducted in the same venue right after 2 days. इसी के साथ ओवर की समाप्ति. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಹತ್ತೋಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. गेंदबाजी का स्थान संभालते हुए सचिन हेगड़े. 12 गेंदों पर 10 रन को डिफेंड करना है. यहां पर एक अच्छी वापसी करनी पड़ेगी. यहां पर कटील फ्रेंड्स के गेंदबाजों को विकेट की तलाश करनी पड़ेगी, रनों को रोकना पड़ेगा, तब जाके इस मैच पर वापसी कर सकते हैं. अभी तक मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल ही नहीं. इसी उम्मीद के साथ सचिन गेंदबाजी करेंगे रोवेल को, सॉरी वाइपाव को. इस बार पहला ही गेंद, शॉर्ट लेन डिलीवरी, खराब गेंद, खेल दिया था उसको मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. 6 रन. और एक बार लोकेश सामना करेंगे सचिन का. फिर से गुड लेंथ डिलीवरी थी, पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं. गेंद पहुंची है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर. जब तक फील्डर उसको वापस करते, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए यहां पर दोनों ही बल्लेबाज. इस 1 रन के साथ स्कोर 40 का आंकड़ा पूरा कर चुका है यहां पर डीजेएस चैलेंजर्स. बाकी बचे 10 गेंदों पर 3 रन. 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. और एक बार रोवेल, इस बार फिर से शॉर्ट लेन डिलीवरी, खेल दिया था उसको बॉलर्स बैक लॉन्ग ऑफ की दिशा पर. वहां पर फील्डर शिवा तैनात थे जब तक गेंद को वापस करते, और 1 रन आसानी के साथ पूरा कर दिया था यहां पर रोवेल और लोकेश की जोड़ी ने. आखिरी 9 गेंदों पर 2 रन मात्र चाहिए टीम डीजेएस चैलेंजर्स को. कैन वी सी 6 फ्रॉम लोकेश? कैन ही फिनिश इन महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल? और एक बार सचिन टू लोकेश. इस बार शॉर्ट लेन डिलीवरी, घुमाकर खेलने की कोशिश जरूर हुई थी. वहां पर कोई संपर्क नहीं था वहां पर बल्ला और गेंद के बीच. गेंद सीधा विकेट कीपर हमदान के हाथ. यहां पर सचिन हेगड़े अपनी अनुभव को दर्शाते हुए कोशिश यही रहेगी कि एक विकेट हासिल करे लोकेश का या रोवेल का, तब जाके एक हल्का सा दबाव की कोशिश जरूर हो सकती है. इस बार शॉर्ट लेन डिलीवरी, खेल दिया उसका हवा पर. सूर्या वहां पर मौजूद, एक बेहतरीन कैच.
इसी के साथ लोकेश की पारी की समाप्ति। नए बल्लेबाज के रूप पर ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳ ಜಯದ ರೂವಾರಿ जर्सी नंबर 10 धारी धीरज पुजारी। अगला मैच खेला जाएगा दुनिया ब्रदर्स और टीम विदवर बॉयज के बीच। दोनों ही टीम के कप्तान यहां पर मौजूद टॉस के लिए। इसी के साथ बेहतरीन गेंद खेल दिया था उसको हल्के फुल्के हाथों से कवर्स की दिशा पर और एक रन का इजाफा। इसी के साथ चौथी ओवर की समाप्ति। स्कोर 42 42 फॉर 2। बाकी बचे 6 गेंदों पर मात्र 1 रन चाहिए जीत हासिल करने के लिए डीजीएस चैलेंजर्स को। बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी का मुजाहिरा अभी तक डीजेएस चैलेंजर्स के बल्लेबाज और गेंदबाजों द्वारा, जिसके बदौलत पूरी तरीके से हावी हो गई थी टीम कटील के ऊपर। I request the captain of Vidwar boys. The captain of Vidwar boys, we need you here. The opposite team captain is waiting for you here for the toss. इसी के साथ बड़ी शॉट धीरज के बल्ले से आता हुआ गेंद सीधा वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पास कड़ी है लेकिन गई नहीं। 1 रन